Hello 11th standard, this is Dennis sir. Now we'll see exercise 3.2 of your third chapter, that is trigonometry. In that, first question is value of cos x is given to you, and here it is mentioned that x is in the third quadrant. You need to find the value of other 5 trigonometric ratios. So sec x is equals to 1 upon cos x, that you already know that cos is a reciprocal of sec. So directly sec x will be minus 2. In the same way, sine square x plus cos square x is equals to 1. Sine square x is equals to 1 minus cos square x. Cos square x value is given to you. It is equals to 3 by 4. So sine x will be plus or minus under root 3 upon 2. Now as such it is lying in the third quadrant. We know that add sugar to coffee. In third quadrant, tan and cot is positive but sine is negative. So we'll consider sine x is equals to minus root 3 upon 2. Now what is the reciprocal of sine? Cosec x. So cosec x is also equals to minus 2 upon root 3. It will be reciprocal. Now tan x will be sine upon cos x. So sine x is equals to minus root 3 upon 2 and cos x is equals to minus half. So minus minus will be cancel out. 2 will be cancel out. Your answer comes out to be root 3. In the same way, cot x is a reciprocal of tan x. So I can write it as a 1 upon root 3. Now see question number 2. Sin x is given to you, that is 3 by 5, and x is in the second quadrant. Second quadrant's only sine and cosec is positive. So cosec is equals to 5 by 3. It is reciprocal of sine x. Okay, so it is 5 by 3. Now sine square x plus cos square x is equals to 1. What will be cos square x? 1 minus sine square x. Sine x is 3 by 5. So sine square will be 9 upon 25. If I will take LCM, it comes out to be 16 upon 25. So cos x will be plus or minus 4 upon 5. Now see, it lies in the second quadrant. So we'll take it as a negative 4 by 5. Now what about sec x? Sec x is a reciprocal of cos x. So I can write it minus 5 by 4. In the same way, tan x is equals to sine upon cos, and cot is a reciprocal of tan x. So this is how you can find the value of other trigonometric ratios using only one trigonometric ratio. You need to keep in mind that you have to see the quadrant. In the first quadrant, all is positive. Second, sine cos. Third, tan cot. Fourth, cos and sec. Now see, next question. Question number 6. You need to find the value of sine 765. Now we have seen that till 10th standard, we know how to find up to sine 90 degree. And we can find till 360 degree also. But what about 765? So for that, आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आपको हमेशा ये जो डिग्री दिया है उसको 180 से डिवाइड करना है. तो जब हम 765 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 184 जा 720 आएगा. आपका रिमाइंडर बचेगा 45. अभी आपको पता है ये डिविडेंड को कैसे लिखते हैं? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. हमने 10th स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में भी देखा था. P of x इज इक्वल्स टू G of x इनटू Q of x प्लस R of x. So same formula here. डिविडेंड मीन्स व्हाट? जिसको डिवाइड करते हैं. डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करते हैं. Quotient is what your answer is, and remainder means your remaining part. So this is what divisor into Q. Divisor is 180 into 4 plus remainder is 45. Now how we'll find this 180 into 4? So see, you know this is 0, this is pi, this is pi by 2, and this is pi, this is 3 pi by 2, and this is 2 pi. Now 4 pi, I can write this as a 4 pi sine 4 pi plus 45 degree. 4 pi means what? See, this is your 1 pi, 2 pi, 3 pi and 4 pi. 4 pi plus theta. So it will be somewhere here in the first quadrant. So in first quadrant all is positive. So I can write it as a sine 45. What is the value of sine 45? 1 by root 2. Okay. In the same way, see second sum, cosec minus 1410. Now before going, what do you mean by this minus sign?
Okay, so if we draw one quadrant like this, here 0, pi by 2, 2 pi, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. Add sugar to coffee. Okay, now see, if we considered clockwise angle always in the anti-clockwise direction is considered as a positive angle. Now what about क्लॉकवाइज डायरेक्शन? दिस इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हमने बताया था, मैंने आगे भी बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, तो क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है. और नेगेटिव एंगल में ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया? दिस लाई इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट. दैट्स वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है. इसलिए कॉस के अंदर का माइनस साइन निकल के प्लस कॉस एक्स हो जाता है और सेक के अंदर का माइनस साइन निकल के सेक एक्स हो जाता है. इसका मतलब है कॉस और सेक आपका इवन फंक्शन है और बाकी सब आपके ऑड फंक्शंस है, हम ऐसा मानते हैं. तो इधर हमें क्या मिला? कॉसेक एक्स का माइनस बाहर आ जाएगा. 1410 को वापिस से 180 से डिवाइड करेंगे, 7 जा और 150 हमारा रिमाइंडर आया. ठीक है, नाउ उसको वापिस से डिवाइड करके 8 जा देखेंगे तो 188 जा 1440 और रिमाइंडर -30 आया. तो कौन सा छोटा नंबर है? आप 150 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो कि 30 की निकाल सकते हैं. तो विल यूज दिस इन आर फॉर्मूला. नाउ सी अगेन, डिवाइजर इंटू क्यू ऑफ एक्स. डिवाइजर क्या है? 180 है गाइज, इंटू 8. सो 180 इंटू 8 एंड योर रिमाइंडर इज -30. तो -30 को एज इट इज इधर हमने लिखा. ठीक है, नाउ सी हाउ यू विल फाइंड दिस 8 पाई. हाउ विल टेक दिस 8 पाई? 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi and this is 8 pi. 8 pi इधर खत्म होता है. Now 8 pi minus theta, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? It will lie in the fourth quadrant. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? सिर्फ कॉस और सिर्फ सेक पॉजिटिव होता है. तो कॉसेक क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव. तो मैं इसको माइनस कॉसेक 30 डिग्री लिख सकता हूं. नाउ माइनस माइनस विल बी प्लस एंड योर आंसर ऑफ कॉसेक 30 विल बी 2. So this is how you can find the value of the angle which is greater than 360 degree. वापिस से मैं बता रहा हूं, पहले 180 से डिवाइड किया तो इधर 7 आया लेकिन रिमाइंडर बहुत बड़ा आया. तो वापिस से डिवाइड करके 8 से हमने किया, 188 जा, तब रिमाइंडर हमें छोटा मिला 30 डिग्री. और 30 डिग्री का वैल्यू भी हमें इजीली पता है. सो वी विल गो फॉर दिस 30 डिग्री. सो 30 डिग्री को हमने कौन से फॉर्म में लिखा? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में. नाउ दिस इज 8 पाई. तो 8 पाई कैसे कंसिडर करते हैं वो भी मैंने बताया. दिस इज 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई. तो वो देखा तो वो हमारा 8 पाई इधर खत्म हुआ और इधर 8 पाई माइनस थीटा है. 8 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव. तो मैंने लिख दिया माइनस कॉसेक 30 डिग्री. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है? 2. So this is how you can find the value of angle which is greater than 360 degree. Now see, next sum. Next sum is what? 10, 19 pi by 3. अगेन 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 जा और रिमाइंडर 1 आया. और जब 90 को वापस करेंगे तो 7 जा और 21 और रिमाइंडर क्या आता है? -2 आता है. तो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 1 छोटा है, तो हम लोग 1 को यूज करेंगे. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 6 जा प्लस 1. अगेन सेम फॉर्मूला, डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder. तो divisor into quotient plus remainder. Now this is 6 3 18 पाई जाएगा इधर प्लस 1 पाई. दोनों को हमने 3 से डिवाइड कर दिया. 18 पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3. इट कम्स आउट टू बी 6 पाई. अभी गाइस 6 पाई कैसे कंसिडर करेंगे? दिस इज योर 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड 6 पाई भी इधर ही खत्म होगा. नाउ 6 पाई प्लस थीटा मतलब हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा हमारा?
10 सब पॉजिटिव होता है, ऑल इज पॉजिटिव, तो 10 को पॉजिटिव ही रखेंगे। एंड 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा ही होता है, और थीटा हमारा पाई बाई 3 आ गया, तो इट इज 10 पाई बाई 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 3? 10 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या है, √3। सो दिस इज हाउ पाई बाई 3 मीन्स व्हाट, 10 180 अपॉन 3, 180 pi is considered as a 180, 180 upon 3 is what, 60, 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। वैसे ही हम लोग 9th सम में देखेंगे, साइन आया तो नेगेटिव आया, नेगेटिव बाहर आ जाता है, मैंने बताया था साइन इज एन ऑड फंक्शन, साइन के अंदर अगर माइनस है तो वो बाहर आ जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। अब वापस से 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, इधर रिमाइंडर 2 आया, और जब उसको 4 से करेंगे तो रिमाइंडर -1, तो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो हम छोटे नंबर को प्रिफर करते हैं, -1 को हम वापस इधर ले जाएंगे, तो 4 3 12, -1 अपॉन 3 इंटू पाई। ये 11 पाई को मैंने क्या लिखा, 4 3 12 -1, और पाई तो पाई रहेगा ही। नाउ 4 3 12 पाई -1 पाई अपॉन 3, वापिस से 3 को दोनों से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 4 पाई माइनस पाई बाई 3। नाउ 4 पाई माइनस थीटा, वापिस से देखेंगे 1 पाई 2 पाई 3 पाई एंड 4 पाई। 4 पाई माइनस थीटा मतलब वापिस से फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है, तो हमने माइनस साइन पाई बाई 3 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू आता है √3/2, और ये दोनों माइनस निकल के प्लस √3/2 वैल्यू आएगा। नाउ सी लास्ट सम of this exercise, that is question number 10, cot -15 पाई बाई 3, सेम करना है, माइनस बाहर आ जाएगा, इट विल बी cot 15 पाई बाई 3। cot को जब डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 12, रिमाइंडर 3 आया, और 4 4 16, रिमाइंडर -1, तो विल गो फॉर 1, क्योंकि 1 इज रिमाइंडर जिसका छोटा है उसको हम कंसिडर करते हैं, तो 4 4 क्या लिखेंगे, 16 -1 इंटू पाई, सो 16 पाई -1 अपॉन पाई, 16 पाई अपॉन 4 क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई माइनस पाई बाई 4। नाउ अगेन विल टेक दिस 1 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई 3 पाई एंड 4 पाई। 4 पाई माइनस थीटा अगेन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस और सेक पॉजिटिव आता है लेकिन 10 नेगेटिव आता है और कॉट भी नेगेटिव आता है, तो हम लिखेंगे माइनस कॉट पाई बाई 4 एंड माइनस कॉट पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉट पाई बाई 4 मतलब कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा 1। So this is how we can find the value of angle which is greater than 360 degree. Thank you.